Hello students, welcome to the Pioneer 360's video lectures. अगले लेक्चर में आप कुछ सीखने जा रहे हैं. सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू. Understanding the terms used in chemical thermodynamics. Introduction. तो कुछ हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि जब हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ये चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है, what is it that we are studying and what are the words, because chemical thermodynamics have some new terms. So those students who will miss this lecture, उनको शायद लैंग्वेज बड़ी अजीब लगेगी. नेक्स्ट लेक्चर में बोलेंगे ये सब जो वर्ड्स है ये कहाँ से आ गए. But anyway, chemical thermodynamics, the very first thing is the definition of chemical thermodynamics. Focuses on the two words thermo and dynamics. So the word thermo is related to heat, and heat is nothing but a form of energy. So we are not just talking about heat, but we are also understanding that heat is a form of energy. And when I use the word dynamics, dynamics is all about change. People who are dynamic, they are ready to change. In the situation which we are presently in, many people have not been able to cope. They just have not been able to adjust with the change. But there are so many people who have just went on and carried on with their work, hard work, studies, everything. They are working. Yeah. The topic thermodynamics. And we are trying to understand the term chemical thermodynamics. The word chemical thermodynamics makes of two words. दो words से आता है. एक है thermo और the dynamics. So when I say thermo, it means heat or the energy, and dynamics is change. So thermodynamics is nothing but a branch of chemistry. Remember thermodynamics क्या है? ये एक chemistry की branch है. So it is a branch of chemistry where we are studying or which is dealing with the heat change, means the energy change. So we are not just talking about the heat. Heat is just one form. Energy change is taking place in a physical or a chemical transformation. कभी कभी physical होता है, कभी कभी chemical होता है transformation. Physical and chemical transformation. ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोसेस या चेंज दो तरह का होता है, फिजिकल या केमिकल. लेट्स अंडरस्टैंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, सॉलिड आइस melting at 0 degree Celsius by absorbing some heat and converting into liquid state, that is water. इसमें आप देखेंगे आइस बिकमिंग वाटर is a physical process, physical transformation. इसमें physical state change हो रहा है, कोई chemical change नहीं हो रहा है, तो ये physical process है. And let us take carbon combustion, carbon plus oxygen forming carbon dioxide gas. इसमें भी heat change होता है, heat evolve होती है. ये एक exothermic reaction है. Just look at the two examples. Students, look at the two examples. And my question to you is there energy change taking place? क्या इसमें energy change हो रहा है? You can answer me in Y and N. Yes या no. When ice melts to form water and when carbon combustion forms carbon dioxide, Nikhil is saying no. There is no energy change. Nikhil is saying no, others are saying yes. Why Nikhil feels that there is no energy change? Nikhil, can you tell why you feel there is no energy change? Nikhil, एनर्जी चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? एनर्जी का मतलब हीट. क्या हीट में बदलाव हो रहा है?
क्या हीट का आदान प्रदान हो रहा है? सोच के जरा देखो, क्या बिना हीट के चेंज के ये प्रोसेस हो सकता है? जब हम कार्बन को जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इसमें हीट रिलीज होती है कि नहीं होती है? So the answer, student, is yes. There is a heat change in all the process, whether it is physical or chemical process. Either the heat is absorbed or the heat is evolved. The process can be exothermic or the process can be endothermic. So important thing ये है कि physical transformation हो या chemical transformation हो, उस heat के बदलाव को study करना ही thermodynamics होता है. तो थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. और जब मैं हीट या एनर्जी की बात करता हूं तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ द अदर. ये तो हमें पता ही है. एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो ऑब्वियसली एनर्जी इज आवर फोकस. चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, बहुत सारे अलग अलग तरह की एनर्जीज होती है. एनर्जीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है और इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन में स्टडी करते हैं. सो व्हेनेवर थिंग्स आर ट्रांसफॉर्म, व्हेनेवर थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, whether it is a physical change or a chemical change, there is a change in energy. And that energy change is what is we are studying in thermodynamics. So this is the introduction of the topic thermodynamics. Now when we say chemical thermodynamics has some features or some characteristics. Studying the chemical thermodynamics is always very unique. Why it is unique is because there are some characteristics of studying this. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की खास बात ये है कि इसमें हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं. क्वांटिटेटिव स्टडीज, इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी वेयर वी आर कंसिडरिंग ओनली इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं. इन थर्मोडायनेमिक्स वी आर इंटरेस्टेड इन द हीट चेंज. तो जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ए से बी अगर बनता है, हमें इंटरेस्ट इस बात में है कि कितना हीट चेंज हुआ. यानी ए के पास कितनी हीट थी, बी के पास कितनी हीट थी, कितनी हीट आई या कितनी हीट गई. हाउ मच हीट इज रिलीज्ड. Suppose 50 kilojoule heat is released. We are focusing on this part. And to understand this part, we will just check what is the initial state. शुरुआत में कितना, फाइनल कितना. हमें सिर्फ हिसाब किताब से मतलब है. हमें सिर्फ एंड में मैटर करता है कि कितना आया या कितना गया. सिंपल. What we are interested in, what is the gain or what is the loss of the heat or the energy. So it is a quantitative relationship. We are understanding the quantity, how much, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कितनी हीट रिलीज हुई. और ये देखने के लिए आपको शुरुआत देखनी है और एंड देखना है. ये देखने के लिए आपको शुरुआत देखनी होती है और एंड देखना होता है. आपके अंदर कितना बदलाव आया ये आप कैसे देख सकते हो. एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से आप स्टार्ट करते हो. एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम एंड बोलते हैं. शुरू और एंड का डिफरेंस देखते हैं और उस डिफरेंस के बारे में ही हम स्टडी करते हैं. सो हियर द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट इज कंसिडर्ड एंड क्वांटिटेटिव स्टडी इज डन. एंड देयरफॉर व्हाट डज नॉट मैटर इज टाइम. टाइम is not considered. कितना समय लगा. क्या मैंने आपको ये बताया कि ए से बी बनने में कितना टाइम लगा? टाइम के बारे में मैंने बताया क्या? नहीं बताया.
मेरा ध्यान या मेरा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि मेरा ए से बी कितने टाइम में बन रहा है। मेरा इंटरेस्ट थर्मोडायनेमिक्स में इसमें है कि ए की हीट कितनी थी, बी की हीट कितनी थी, कितनी हीट आई, कितनी हीट गई। I am interested in knowing what is the change in the heat. I am not interested in how much is the speed. I am not interested in whether it is taking place slow or fast. It is similar to your result. A student is given admission on the basis of the marks. While giving the admission, what is seen? They only check your marks. Do they ask you how much time you studied? No. So here also when you study thermodynamics, time is not the element. समय को महत्व नहीं दिया गया है। ना समय को महत्व मिलेगा, समय को महत्व नहीं मिलेगा मतलब रेट को महत्व नहीं मिलेगा, स्पीड को महत्व नहीं मिलेगा। टाइम, रेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैकेनिज्म इज नॉट इम्पोर्टेंट। कैसे हो रहा है हमें क्या लेना देना, कैसे हो रहा है हमें क्या लेना देना। हमें सिर्फ बताओ कि ए से बी बना तो कितनी हीट आई, कितनी हीट गई। मैकेनिज्म इज नॉट इम्पोर्टेंट, रेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, नंबर ऑफ स्टेप इज नॉट इम्पोर्टेंट। स्टेप्स के बारे में भी हमें महत्व नहीं देते हम लोग। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स की यूनिक बातें हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स इज जनरली अ मैक्रो टाइप ऑफ स्टडी। ये मैक्रो स्टडी है, मैक्रो। छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हम, मॉलिक्यूल्स, एटम्स के ऊपर नहीं जाते हम लोग, हम सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है थर्मोडायनेमिक्स के, वही उसके लिमिटेशंस हैं। आई रिपीट, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वही उसके लिमिटेशंस है, जो उसकी विशेषता है वही उसकी कमियां है। थर्मोडायनेमिक्स की कमियां यही है कि इसमें टाइम को महत्व नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन यही है कि इसके अंदर हम रेट को स्टडी नहीं करते, मैकेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन हाउ मच energy came, how much energy went. So we are only effectively studying. So chemical thermodynamics involves certain terms, and the very first part of the thermodynamics is all about the word called as system. So the word system से शुरू करेंगे। सिस्टम क्या है, ये एक शब्द है, टिपिकल शब्द है सिस्टम। सिस्टम को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो अभी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं स्टूडेंट्स, अभी आपको सिर्फ सुनना है। सिस्टम का मतलब क्या है, जिसको मैं थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए ऑब्जर्व करूंगा, मेरी स्टडी जिसके बारे में है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर द थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन, whatever I am studying is a system for me. मान लो मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ और इस टेस्ट ट्यूब में मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ और इस रिएक्शन में मैं थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहा हूँ। इसमें मैंने ए और बी को मिक्स कर दिया है और इसके अंदर आने वाले हीट चेंज को मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये जो टेस्ट ट्यूब है, मेरे लिए ये टेस्ट ट्यूब, मेरी जो टेस्ट ट्यूब है, ये मेरे लिए सिस्टम है। So what is system? System is the part of the universe. इस दुनिया के, पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें से वो हिस्सा जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। So system is the part of universe which is under thermodynamic observation. सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर द थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन। जो भी आप स्टडी करेंगे, एक सिलेंडर में आपने गैस ले लिया है, सिलेंडर के अंदर भरा हुआ गैस है जिसको आप स्टडी कर रहे हो। सिलेंडर के अंदर अगर आपने गैस को स्टडी कर रहे हो, आप एक पिस्टन लगा के उसके प्रेशर को, उसको एक्सपांशन या कंप्रेशन कर रहे हो, ये गैस आपके लिए स्टडी जिसकी आप कर रहे हो, ये गैस आपके लिए सिस्टम है, क्योंकि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। आप इसमें ये पता लगा रहे हो कि कितनी हीट गई या कितनी हीट आई, हीट गई या हीट आई।
तो ये आपके लिए सिस्टम है। एवरीवन विथ मी? एवरीवन विथ मी? गुड। सिस्टम, काफी वर्ड यूज होने वाला है बार बार, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। सिस्टम क्या है? अरे भाई सिस्टम मतलब जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स के लिए पढ़ रहे हैं वो सिस्टम है, वो कुछ भी रहने दो, वो सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम के बाहर जितना हिस्सा है, मैंने जैसे बताया ये दुनिया है, मान लो इस दुनिया में से हम सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो सिस्टम को छोड़ के जो चीज बच गई उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग। सो सराउंडिंग क्या है भाई? सराउंडिंग किसको बोलेंगे? सराउंडिंग इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम। सराउंडिंग इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम, यानी सिस्टम को छोड़ के जो बच गया वो है सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के जो बचा वो सराउंडिंग है। सिस्टम ने हीट रिलीज की, कहाँ गई हीट? हीट कहाँ गई? हीट गई सराउंडिंग में। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो खेल है पूरा थर्मोडायनेमिक्स का, पूरा थर्मोडायनेमिक्स का खेल किसके बीच में है बच्चों? एवरीवन देयर? एवरीवन देयर? एवरीवन देयर? ये सारा खेल किसके बीच में है? सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये सब होने वाला एक्सचेंज है, और इसलिए ये वर्ड्स हम बार बार यूज करेंगे, सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग। व्हाट इज सिस्टम? पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज सराउंडिंग? Surrounding is the part other than the system. So this is how we understand surrounding system. Then there is the imaginary boundary between the system and the surrounding. System और surrounding के बीच में एक बाउंड्री है, बाउंड्री। ये बाउंड्री विजिबल भी हो सकती है, इनविजिबल भी हो सकती है। आई रिपीट, ये बाउंड्री विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। कई बार बाउंड्री विजिबल होती है। बाउंड्री विजिबल है मतलब जैसे एग्जांपल, सिलेंडर में भरा हुआ गैस। अगर मैं किसी गैस को स्टडी कर रहा हूं जो सिलेंडर में भरा हुआ है, क्या मुझे आप बता सकते हो कि सिलेंडर और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री है क्या? क्या उसको आप देख सकते हो क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? यस या नो? यस या नो? यस या नो? झलक ने नो बोला। बाउंड्री नहीं है क्या बेटा? सिलेंडर, ये मेरा सिलेंडर है, इसमें मेरा गैस है, सिलेंडर के अंदर गैस है, सिलेंडर के बाहर सराउंडिंग है। क्या दोनों के बीच में कुछ बाउंड्री है कि नहीं है? विजिबल बाउंड्री है कि नहीं है? फिर से सोच के जवाब देना झलक। हाँ, तो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री है ना, जो दीवार है वो दीवार उसकी बाउंड्री है। दीवार के उस पार गैस है, दीवार के इस पार सराउंडिंग है ना। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? Yes, sir. Boundary can be visible and boundary can be invisible also. इनविजिबल बाउंड्री का एग्जांपल देता हूं आपको। मैं स्टडी कर रहा हूं आइस को, आइस मेल्ट हो रहा है उसको स्टडी कर रहा हूं, और मैंने आइस रखा हुआ है टेबल पे और वो आइस मेल्ट हो रहा है। इसमें आइस मेरा सिस्टम है, आइस मेरा सिस्टम है, सराउंडिंग उसके बाहर की हवा है। क्या इसमें आइस और सराउंडिंग के बीच में कोई दीवार है? क्या इसमें आइस और सराउंडिंग के बीच में कोई दीवार है? आंसर इज है, लेकिन इनविजिबल है। बाउंड्री है लेकिन वो इनविजिबल है। एक ऐसी जगह है जहां आइस खत्म होती है और सराउंडिंग शुरू होती है, लेकिन ऑफ कोर्स ये विजिबल बाउंड्री नहीं है। मैं दिखा नहीं सकता कि ये देखो यहाँ पे आइस खत्म हो गया, यहाँ पे एयर चालू हो गया। तो बाउंड्री कैन बी विजिबल और बाउंड्री कैन बी इनविजिबल, बाउंड्री कैन बी रियल और बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी।
जितने लोग मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, द बाउंड्री कैन बी रियल और द बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। ये बाउंड्री किसके बीच में होती है? बाउंड्री किसके बीच में होती है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होती है। तो हमने पढ़ लिया है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। हमने शब्दों के मतलब समझे हैं, सिस्टम को समझा, सराउंडिंग को समझा। माइक बंद करो बेटा, कौन है? सिस्टम, सराउंडिंग, दोनों के बीच में होती है बाउंड्री। कभी विजिबल होती है, कभी नहीं विजिबल होती है। सिस्टम हो गया, सब बाउंड्री हो गया, सराउंडिंग हो गया। और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा? एनीवन? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग दोनों को मिला दो तो क्या बनेगा? यूनिवर्स। सराउंडिंग को मिला देंगे तो बन जाएगा, वेदांत चौधरी हैज गॉट इट राइट, वेरी गुड निखिल, वेदांत एंड हर्ष, तीनों बच्चे अलर्ट एकदम। यूनिवर्स, ये हमारी दुनिया। तो कभी कभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स, एंड देयरफॉर thermodynamics will have the word system, surrounding, universe, and one more word is boundary. Okay, so here we are. The animation of understanding of universe. This is the universe. This is the part which we are studying. System, surrounding, सिस्टम, सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री है ना। तो 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं, प्लीज नोट डाउन, इसको नोट कर लो। हर एक का डेफिनेशन मैं आपको लिख के, आप डेफिनेशंस लिखेंगे हम लोग हर एक का, जो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ है। व्हाट इज सिस्टम? व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under thermodynamic observation या consideration। लिखते रहो फास्ट, लिखते रहना स्पीड में। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under thermodynamic observation और consideration। ये हो गया सिस्टम का डेफिनेशन। जिस चीज को आप देख रहे हो आपका सिस्टम है। सराउंडिंग क्या है? अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम। मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दिया है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के जो बचा वो सारा सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो भी है वो सराउंडिंग। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम। बाउंड्री क्या है? सरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कभी कभी फिजिकल होती, कभी कभी इमेजिनरी होती है। कभी फिजिकल होती है जिसको आप दिखा सकते हो टच करके, और कभी कभी इमेजिनरी होती है बाउंड्री। जैसे मैंने बताया, बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी, रिजिड और नॉन रिजिड, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट यू नो दैट द बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी।
और ये यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज नथिंग बट सिस्टम प्लस सराउंडिंग टुगेदर। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दो, बन गई यूनिवर्स, बन गई है पूरी दुनिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हमने सिस्टम पढ़ लिया, यूनिवर्स पढ़ लिया, बाउंड्री पढ़ ली, सराउंडिंग पढ़ लिया, सब हम तैयार हो गए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए। Three types of system. Three types of system: open system, closed system, and isolated system. So how do you define an open system? Open system is a system which can exchange heat as well as matter with the surrounding. जो सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर सकता है, मैटर एक्सचेंज कर सकता है, उसको ओपन सिस्टम कहते हैं. एग्जांपल, बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन वेसल. What is a closed system? Closed system is a system which can exchange heat but not matter with the surrounding. हीट एक्सचेंज कर पाएगा, मैटर एक्सचेंज नहीं कर पाएगा. एग्जाम्पल, बॉइलिंग वाटर को क्लोज वेसल में रख दो, हीट जा सकती आ सकती है लेकिन मैटर नहीं जा पाएगा. और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम है. अगर बॉइलिंग वाटर को आप थर्मोस फ्लास्क में रख दो, इट विल नाइदर एक्सचेंज हीट nor it will exchange matter with the surrounding. Such system is known as an isolated system. So the definition is regarding the exchange of heat and matter with the surrounding. So please note down the three examples. Now we are going to talk about the properties of system. When we study thermodynamics, we are going to study some properties of the system. हम system को study करने वाले हैं, और जब हम system को study करते हैं तो properties को study करते हैं. So properties की जब बात होगी, properties of system, there will be two words which will be used. And so I am going to explain this with the help of the chart, where I will be explaining you that the properties of system can be extensive or they can be intensive. सिस्टम की प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव हो सकती है और इंटेंसिव हो सकती है. क्या फर्क होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में? लेट अस अंडरस्टैंड. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विच विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर. क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, कितना है. कम ज्यादा करेंगे तो ये वैल्यू बदलती है. सो डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी. और जानबूझ के मैं यहाँ पे इंटेंसिटी में लिखूंगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर. अभी आप मुझे बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों बोला, इंडिपेंडेंट क्यों बोला? यहाँ विच डिपेंड बोला तो यहाँ विच डज नॉट डिपेंड लिख देते, लेकिन मैंने इंडिपेंडेंट क्यों बोला? कोई स्मार्ट बच्चा बताएगा मुझे? इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर मैंने क्यों बोला? एनीवन? एनी स्टूडेंट हु इज स्मार्ट? इट इज द सेम थिंग फातिमा, बट व्हाई आई एम यूजिंग पर्टिकुलर? मैंने इसलिए बोला ना, मैं आई एम यूजिंग दिस. नहीं राज, नहीं राज, नहीं राज, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो. ओहो ओहो, इंडिपेंडेंट क्यों बोला? So I use the word independent so that it becomes easy to remember. I for intensive, I for independent. क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट होता है तो इंटेंसिव, नहीं होता तो एक्सटेंसिव. अरे भाई, एग्जाम में हमें इतनी सारी चीजें याद रखनी है तो स्मार्ट बनना पड़ता है. एग्जाम के टाइम पे बत्ती जलती है क्या दिमाग की? एग्जाम के टाइम पे ये वाला वो है, ये वाला वो है, क्या है एक्सटेंसिव वाला, इंटेंसिव वाला, अरे वो वाला ये वाला, कुछ नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए मैंने ऐसा किया. इंटेंसिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर एंड एक्सटेंसिव इज डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल. सब लोग ध्यान से देखो. मास, किसी भी चीज का मास, वॉल्यूम, then number of moles,
क्या आप मुझे बताओ, मैं उसकी क्वांटिटी चेंज करूंगा सिस्टम की तो ये वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मैं अगर उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा करूंगा तो इसकी वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी? सिस्टम, जब मैं बोलता हूँ सिस्टम का मतलब आप कुछ भी ले लो यार, सिस्टम का मतलब आप गैस ले लो या पानी ले लो। अगर मैं पानी कम करता हूँ या ज्यादा करता हूँ तो उसका मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज, ये तीनों प्रॉपर्टीज को मैं क्या बोल सकता हूँ? ये तीनों प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज है? ये तीनों प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। लेकिन अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देने वाला हूँ। इधर एक्सटेंसिव, इंटेंसिव में मैं बात करने वाला हूँ टेम्परेचर। मेरे पास बॉइलिंग वाटर है, मेरे पास बॉइलिंग वाटर है, ये मेरे हाथ में पानी का बॉटल है, इसमें पानी का टेम्परेचर है 90 डिग्रीज मान लो, एकदम गर्म पानी है, और इसमें से कुछ पानी मैं कम कर देता हूँ। क्या टेम्परेचर कम होगा? क्या टेम्परेचर कम होगा? क्या टेम्परेचर बदलेगा? क्या टेम्परेचर बदलेगा? क्या टेम्परेचर बदलेगा? सबने आंसर देना चाहिए, सबने आंसर देना है। सबका एक साथ आंसर आया, लेकिन प्रियांशु ने यस बोल दिया, बाकी लोगों ने ना बोल दिया। प्रियांशु तूने ऐसा क्यों कर दिया? प्रियांशु तूने ऐसा क्यों कर दिया? अरे बेटा, तू गर्म पानी के अंदर उंगली डालेगा तो जल जाएगी ना रे उंगली। थोड़ा सा पानी भी लेता है तो गर्म ही रहेगा ना, उतना ही टेम्परेचर रहेगा ना। हाँ, उसकी क्वांटिटी कम करने से क्या वो ठंडा हो जाता है? क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर। टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी। 5 लीटर पानी का अगर 100 डिग्री है, 5 लीटर में से 500 ml तूने अलग किया तो क्या 500 ml का टेम्परेचर नहीं होगा कम? उतना ही होगा वो। क्वांटिटी से उसका क्या लेना देना है? क्वांटिटी से उसका लेना देना नहीं है। एवरीवन विथ मी? एवरीवन विथ मी? जिस तरह से टेम्परेचर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, वैसे ही कुछ और प्रॉपर्टीज है जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। एग्जांपल है प्रेशर। प्रेशर प्रेशर का डेफिनेशन ही है फोर्स पर यूनिट एरिया। जो भी चीज पर यूनिट एरिया डिपेंड करती है, फोर्स इज पर यूनिट एरिया। प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया है। कितना फोर्स अप्लाई किया 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो फिक्स रहेगा। ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्वांटिटी बदलेगी तो ये वैल्यू बदलने वाली नहीं है, क्योंकि ये पर यूनिट एरिया है। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना प्रेशर है अप्लाई किया हुआ, वो थोड़ी बदलेगा। 1 मीटर स्क्वायर का प्रेशर तो उतना ही रहेगा। आपका मैटर बदलेगा तो ये एरिया बदलेगा, एरिया बदलेगा तो टोटल प्रेशर नहीं बदलने वाला है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। डेंसिटी, क्या डेंसिटी बदलती है? नहीं, डेंसिटी तो फिक्स रहती है, बिकॉज मास पर यूनिट वॉल्यूम। पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी। अरे पानी तुम कितना भी लो, पानी की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर सीसी ही रहेगी ना। पानी कितना भी लो, उसकी डेंसिटी थोड़ी बदलती है। उसकी डेंसिटी तो 1 ग्राम पर सीसी ही रहेगी, क्योंकि उसकी व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है जो वैल्यू क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, फिक्स्ड रहती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे और एक चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है, लाइट से उसका रिलेशन है। ग्लास के लिए वैल्यू फिक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। आप कांच का टुकड़ा छोटा लो या बड़ा लो, कांच का टुकड़ा छोटा हो या बड़ा हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, क्योंकि वो भी रेशियो है। तो जनरली जो रेशियो होता है वो एक्सटेंसिव होता है, बिकॉज इट इज अ रेशियो। तो बस यही चीज है हमें समझनी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्या क्वांटिटी पे डिपेंड करता है भाई? क्या लगता है आपको? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्वांटिटी पे डिपेंड करता है क्या? पानी 100 डिग्री पे बॉइल होगा ना रे, कितना भी लो।
पानी 50 ग्राम लो, 100 ग्राम लो, 5 लीटर लो, 10 लीटर लो, 100 डिग्री पे ही बॉईल होगा ना। बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स है ना, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी बदलता है। बॉइलिंग पॉइंट बताने के लिए आप पूछते हो क्या मुझे कितना पानी लिया सर? मेल्टिंग पॉइंट पानी का 0 डिग्री है, आइस 0 डिग्री पे पानी बनता है, कितना भी आइस लो 0 डिग्री पे ही मेल्ट होता है। सो ये सब वैल्यूज जो है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन ये कहता है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो आपको हीट करनी पड़ेगी प्रोवाइड, ये मेरे हाथ में समझो कोई चीज है, ये मेरे हाथ में कोई चीज है, मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए, याद रखना, 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट होती है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। फिक्स रहते हैं, ये वैल्यू फिक्स है। स्पेसिफिक हीट या मोलार हीट। स्पेसिफिक हीट, मोलार हीट मतलब 1 मोल के लिए, स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। लिख के रखना जिसको मालूम नहीं फिजिक्स, 1 ग्राम को सब्सटेंस को 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो लगता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और सिर्फ हीट कैपेसिटी बोलूंगा ना तो इधर आएगा। हीट कैपेसिटी मतलब वजन नहीं देते हैं, सिर्फ सब्सटेंस लेते हैं, सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो लगता है उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब बोलते हैं तो सॉरी, हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, हाँ हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, और स्पेसिफिक बोलेंगे तो इंटेंसिव। हीट कैपेसिटी मैटर पे डिपेंड करेगी, तुम्हारा सब्सटेंस कितना वजन है, इसका वजन बदलेगा तो ये कैपेसिटी बदलती है, ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये 1 ग्राम के पीछे वाला है ना, इसलिए ये फिक्स है। सो दैट्स इट स्टूडेंट, इंटेंसिव एक्सटेंसिव टॉपिक मैंने कंप्लीट कर। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट माय क्वेश्चन एंड आंसर मी। If we take 2 extensive properties, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मैं अगर रेशियो लेता हूं, क्या लगता है आपको इनका जो रेशियो होगा वो प्रॉपर्टी कैसी होगी? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? माय क्वेश्चन इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। आई रिपीट, ratio of 2 extensive properties will be intensive or extensive. अभी तक एक भी स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहा है। हाँ, हर्ष शेलके, वेदांत चौधरी, हर्ष अगेन, श्रुति एंड अवेश नॉट करेक्ट, अंकिता राइट, जुफ्शा नॉट करेक्ट। सोच के जवाब दो बच्चों, सोच के जवाब दो। 50-50 आ रहा है। चेक द स्पेलिंग। क्या हो गया बच्चों? कौन सी स्पेलिंग बेटा? ईशा, कौन सी स्पेलिंग की बात कर रही हो तुम? सर इंटेंसिव। क्या क्या बोल रहे हो? ईशा माइक ऑन करके बोलो, क्या बोल रही हो? स्पेलिंग का क्या हो गया? माइक ऑन करके बोलो, जल्दी 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 बोलो, क्या बोल रहे हो? एक्सटेंसिव लिखा है ना 2 टाइम्स, हाँ, तो एक्सटेंसिव आएगा कि ऊपर इंटेंसिव आएगा? नहीं मैंने बोला ना 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, मैंने बोला ना 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ले लो यार, मास ले लो और वॉल्यूम ले लो, चलो इनका रेशियो लूंगा तो ये प्रॉपर्टी कैसी आएगी? इंटेंसिव आएगी या एक्सटेंसिव आएगी? मेरा क्वेश्चन ये था। एक्सटेंसिव सर। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जब मैं लेता हूं तो मुझे इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे कि डेंसिटी।
डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या आप मेरी बात को समझ गए? अगर हाँ तो थम्स अप दे दो और लिख लो। The next concept which we are going to study is the concept of state of a system. System का state क्या होता है? What is meaning of state of a system? ये वर्ड आ गया आपके लिए नया। सिस्टम तो आपने पढ़ चुके हो, आप सिस्टम तो आपको मालूम है। अब मैं बात करने वाला हूं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। और अभी थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग स्टडी करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक तरह का सिस्टम, जिसको मैं कहूंगा एक गैस, सिलेंडर में भरा हुआ गैस। अ गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर इज अ सिस्टम फॉर अस। प्लीज नोट, अ गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर इज द सिस्टम फॉर अस। अब इस सिस्टम के लिए कुछ ऐसी वैल्यूज होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिसको मैं बोलता हूं प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, ये इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। और ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है जो उस गैस के लिए इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब करने के लिए, ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, इनकी जो वैल्यूज होगी फिक्स्ड। समझो, मान लेते हैं, ऐसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि इस गैस का प्रेशर है 1.2 एटमॉस्फेयर, इस गैस का वॉल्यूम है 3 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं 2, टेम्परेचर ले लिया 298 केल्विन। मैंने आपको हर वैल्यू, हर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू बता दी आपको। अगर मैंने आपको इसकी सारी वैल्यूज बता दी, तो ये जो वैल्यूज मैंने बताई, इसको ही बोलते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये सिस्टम एक स्टेट में है। सो स्टेट क्या है? स्टेट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। एक वैल्यू है, हर एक वैल्यूज विच डिस्क्राइब द सिस्टम। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। अगर इनकी वैल्यूज हमें मालूम है तो ये जो डिस्क्राइब करेंगे उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। सो प्लीज नोट state of a system, students. What is the, now when I take a system, sorry students, when I take a system, अभी आगे से याद रखना, जब भी मैं सिस्टम बोलूंगा आपके सामने आना चाहिए गैस। इस गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1 एंड नंबर ऑफ मोल है N1। इसको मैं बोलूंगा सिस्टम इज इन स्टेट 1। इसका एक स्टेट है 1, एक पर्टिकुलर स्टेट में है ये सिस्टम, इनिशियल स्टेट, शुरुआत में ये हालत है उसकी। अगर इस सिस्टम के अंदर मैं ये जो वैल्यूज है ये बदल देता हूं, प्रेशर को मैंने बदल दिया, वॉल्यूम को बदल दिया, टेम्परेचर को बदल दिया, नंबर ऑफ मोल को बदल दिया, तो मैंने क्या बदल दिया? मैंने तो इसका स्टेट बदल दिया। तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। सिस्टम का स्टेट चेंज कब होता है? सिस्टम का स्टेट कब चेंज होता है? जब एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल, एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल चेंजेस। कम से कम एक वैल्यू बदलनी चाहिए। चारों बदलेगी तो भी चलेगा, एक बदलेगी तो भी चलेगा। अगर एक वैल्यू बदलती है तो भी हम बोलेंगे सिस्टम का क्या बदल गया? सिस्टम का स्टेट बदल गया, सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। चेंज हो गया स्टेट मतलब कुछ तो बदला, या तो प्रेशर बदला, या तो वॉल्यूम बदला, या तो टेम्परेचर बदला, या तो नंबर ऑफ मोल बदला, या सब कुछ बदल दिया। घर का एक बल्ब बदला या 2 बल्ब बदले, जो भी किया आपने बदला, सिस्टम का स्टेट चेंज किया।
So change in the state of a system is related to the variables, the values. If the values change, then we say that the state of the system has changed. अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स में से कोई एक वैल्यू भी बदलती है तो हम बोलते हैं सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया। और जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो हम बोलते हैं वो हो गया प्रोसेस। क्या हो गया? प्रोसेस हो गया। So when the system changes from one state to the other state, then we say that the process has taken place. Process हुआ, कुछ तो हुआ। So change in the state is nothing but caused by the process. System का state बदलना मतलब ये बदलना, process हो गया।